गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चंमानू से आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ पर्पल लाइफ इट्स माय लाइफ एपिसोड नंबर 21 वेडनेसडे 26 अगस्त 2020। दोस्तों आज मैं आपको दो टॉपिक से बात करूंगा और फर्स्ट जो टॉपिक है उसमें हम आपने देखा होगा कि हम आजकल घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम। लेकिन होता क्या है कि हम जब कंप्यूटर के सामने बैठते हैं, हम डेस्कटॉप के सामने बैठते हैं या हम मोबाइल के सामने बैठते हैं तो हमारे बैठने का पोस्चर सही नहीं होता है और हमारा पूरी गर्दन, हमारी आंखें और हमारा शरीर हमेशा दर्द करता है। तो आज हम बात करेंगे करेक्ट पोस्चर्स के बारे में और इससे रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं और इसमें बताया गया है कि फिक्स्ड फॉरवर्ड नेक एक्सरसाइज क्या होती है, यानी कि फिक्स फॉरवर्ड जो गले की एक्सरसाइज होती है, नेक की जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है गर्दन की। उसमें चिन टक्स है जो आप जितनी बारी चाहे कर सकते हैं। हेड एंड हैंड अपोजिशन 2 से 3 बार करना चाहिए। नेक एक्सटेंशन आपको 2 से 3 बार करना चाहिए। शोल्डर रिट्रैक्शन आपको 3 से 4 बार करना चाहिए। शोल्डर रिट्रैक्शन एक बार जो एक्सटेंशन होती है वो भी आपको 3-4 बार करना है और ट्रेपेजियस एंगेजमेंट ये आपको 4 से 5 बार करना है। इसके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ छोटा सा वीडियो और मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। Namaste, I am Dr. Ankita Dhelia, welcoming you back to the Stretch at Home series. Today we will see how to tackle fixed forward head posture. Now what is fixed forward head posture? When we are sitting at our laptops or focusing on something, watching television, we are mostly like this. The head goes forward, working on the laptop, or we are doing something called a text neck, which means looking at our mobile phones in texting and the head is down like that. These things are called a fixed forward head posture. The correct posture is when the ears are in line with the shoulders. So research says that for every 1 inch the head comes forward, the load on our spine and neck increases by about 5 kgs. And depending on the time we are spending like this or like this, the load on our neck could be about 20 to 30 kgs. And this is what gives us a lot of stress in this region and this region. So let's see how to fix this. The first stretch is called the chin tuck, which means we just take our chin and take it back towards the chest. We are not doing it like this, taking the head back up or down. We are taking it parallel to the ground back. We keep going back till we feel a resistance from the back of our chair on our backs. And we just keep going back. And we can relax. This is something we can keep doing throughout the day in between our breaks of working on the desktop. Stretch number 2 is we take our palms and interlace the fingers and put it behind our heads, somewhere here. And we will bring our elbows close to each other and then open them. What a fixed forward head posture does is it rolls our shoulders in. So this is a good way to open the shoulders. After we have done this for 2-3 times, what we'll do is we'll push our head with our hands and the hands with the head. So we are kind of opposing the head and hands towards each other, pushing them and offering a resistance. In this, we need not worry whether our elbows are open or closed. We just focus on the pushing, hold it for a while and relax. This can be done for about 2 or 3 reps again. Another issue the fixed forward head posture causes is shortening of the muscles in the front of the neck. So what we'll do is, we look a little obliquely, not completely to our side, not in the front, in the middle, somewhere around 45 degrees, and we just take our head back. Tilt it back. And we'll feel a stretch here on a muscle called the sternocleidomastoid. And relax and come forward. And we repeat it on the opposite side, taking the head obliquely and leaning it back. Feeling the stretch here. Same, this can be also repeated for 2 to 3 times, and this is something we can keep doing in between our breaks while working. Stretch number 4, we'll keep our hands in a fist like we are ready to punch someone by the sides of our bodies, and we'll take our elbows back so that we can open our shoulders. And the elbows, they also come close to the spine, as close to each other. We hold it for a moment and we can relax.
We can do it for about 4 to 5 repetitions. Stretch number 5 is just a modification of this, where we do the same thing but the fists come in towards the spine from the sides instead of coming from the front. So this time we are punching people on our sides, and the hands, the elbows will come close to each other and towards the spine to again open our rounded shoulders. And we can release. Same, we can do it for about 4 to 5 repetitions. The last one is the 6th stretch, where we make a Y with our arms. We take the chin back in, tuck the chin towards the chest, not up, not down, just back in a plane parallel to the ground so that ears are above the shoulders, more or less. The hands are in a Y, and we take our palms as much behind as possible. And hold and relax. Bring the arms down like the hands of a clock. Chin tucked back. Again the arms go back. As much back as we can. And relax. Bringing it down a little more. Chin tucked back, arms go back. Depending on the strain in our neck and shoulders, it can be a little strenuous. But when we do it for a few times, it will become really, really easy. And a little more down, chin back, arms back, and hold. And relax. So these are few stretches that can be done to release the stress, load and tension around the spine, shoulder and neck area. Enjoy doing them. Thank you. दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईच्या माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ एपिसोड नंबर 21। अभी आपने देखा कि हमारे जो पोस्चर्स होते हैं, जो हेड के पोस्चर्स किस तरह से होते हैं और हमें किस तरह से रिलीफ मिलता है। अगर हम इस एक्सरसाइजेस को करेंगे तो इससे हमें स्ट्रेस में जो टेंशन होती है, जो हमारा परेशानियाँ होती हैं और स्पाइन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है, उससे काफ़ी आराम पहुँचता है। दोस्तों अब दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कोरोना की दवाई, जो कि आपके शरीर में ही मौजूद होती है। इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों बहुत कोशिशों के बावजूद भी अभी तक कोरोना की दवाई नहीं निकली है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की कोई भी दवाई अभी नहीं बनी है। और जो भी कोरोना से स्वस्थ हुए हैं वो सिर्फ अपनी इम्यूनिटी उसी की वजह से ठीक हुए हैं, यानी कि उनके शरीर में स्वयं रोगों से लड़ने की ताकत होती है। बहुत लोगों की ऐसी धारणा है कि ये बीमारी एक बार तो सबको होनी ही है, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो बच जाएगा और जिसकी अच्छी नहीं होगी तो वो नहीं बचेगा। मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी की कोरोना की दवाई है। तो हमें सारा ध्यान अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर देना चाहिए। यदि आप इस महामारी को मात देना चाहते हो तो हमें ये सीखने की बहुत आवश्यकता है कि किन चीज़ों को किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है और किन चीज़ों से इम्यूनिटी घटती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले ये बताना चाहता हूँ कि इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों पर जिस पे आपको ध्यान देना है वो क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो पहली है योगा, और दूसरी व्यायाम या कोई खेल आप कर सकते हैं। घर का बना हुआ आपको शुद्ध भोजन करना चाहिए। आंवला किसी भी रूप में आप खाएं, लेकिन आंवले का उपयोग करें। फल और खासकर खट्टे फल जिसमें विटामिन सी होता है उन्हें आप जरूर खाइएगा। हरी सब्जियों को खाइएगा, दालों को खाइएगा, गुड़ खाइएगा, शक्कर की जगह पे गुड़ खाइएगा, और शुद्ध तेल कोई भी आप खाइएगा, लेकिन रिफाइंड ऑयल जरा सा भी मत लीजिएगा। तुलसी और अन्य आयुर्वेदिक पेय पदार्थ भी आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप दूध, दही, लस्सी या घी इत्यादि का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूध कोशिश कीजिए गाय का दूध हो। अब दूसरा मैं बताना चाहता हूं कि शरीर की इम्यूनिटी घटाने वाली चीज़ें क्या होती हैं, जिनसे कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है, जो हमें अवॉइड करनी चाहिए।
दोस्तों इसमें सबसे पहले है मैदा, जो सबसे विनाशकारी पदार्थ है और किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि ब्रेड है, नान है, भटूरे हैं, बर्गर है, पिज्ज़ा है, जलेबी है, समोसा है, कचौरी पाव है, जो पाव भाजी वालों के पास होता है, ये आपको जरा भी नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड ऑयल का जरा भी इस्तेमाल ना करें। चीनी का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। शुगर मतलब कि मत लीजिएगा। उसकी जगह आप गुड़ और शक्कर या खांड खा सकते हैं। बाहर का कोई भी जंक फूड ना खाएं। मैदे और चीनी से बनी चीज बिल्कुल ना खाएं, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, जलेबी आदि। दोस्तों एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाना बनाना बंद कर दें, वो ठीक नहीं होता है। उसकी जगह आप आयरन के बर्तनों में बना सकते हैं। दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीना चाहिए आपको। पैकिंग वाली चीज़ें भी मत खाइएगा और खाएं तो कम से कम खाएं। इस तरह इन बातों को अपनाकर आप अपनी इम्यूनिटी को तेजी से बढ़ा सकते हैं और कोरोना को मात दे सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि आपकी इम्यूनिटी ही कोरोना की असली दवाई है। अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना है और अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो अपने घर वालों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, आपको लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम हर्बल लाइफ इट्स माई लाइफ। इट्स ए हेल्थ एंड वेलनेस गेटवे। एपिसोड नंबर 21 आपको मुंबई से हमने प्रसारित किया है और अब आपसे यहीं पर अनुमति चाहते हैं और कल फिर कुछ और हेल्थ टिप्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हम कहते हैं नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।